And welcome back to yet another session on our online teacher training program by Markazi Talimi Board. Today's topic is something very, very important for teachers because I'm going to talk to you on the roles and responsibilities of a teacher. What should be the roles and responsibility? What should be the responsibility? What is your role as a teacher? What is the role as a facilitator? What is the role as a mentor? What is a role as a person who could guide the next generation and make them competent enough to survive in this competitive world? And also, very important, how could they build the future for the life hereafter? So, in most of the cases, the profession now, the teacher's profession now, has changed a lot. It was considered, and definitely today also, if you or I as a teacher would think that and should think that this is a very noble profession because we are building characters. And if you're doing it, then definitely this is a very noble profession. And of course, post COVID, the situations have got changed. The scenarios, the conditions in which we are surviving, especially teachers, are struggling a lot. Let me give you an example. In the last 3 months, after a year about the first breakout of COVID, when the schools reopened, we are struggling to get teachers to teach in the schools. Whomever I speak to with my connections and my network, the schools across the country, the only one main issue is, sir, we are not getting teachers to teach in the classroom. Various reasons are there. I'm not going to discuss on those reasons. But my point here is the profession is not considered as a profession where you can go and work and earn money. Now imagine the conditions, imagine the situation, imagine the plight of the management who are waiting for the schools to reopen, who are waiting for students to come back in full strength, and who are waiting to see that the classroom is live again. To make it live, you need a person there, and that person is not available. And that person is called a teacher, a mentor. So we have understood who a teacher is and who a mentor is. I'm going back on the definition of a teacher. Various definitions are there. Different psychologists, different philosophers have given different statements on who a teacher is. One interesting statement which I got is what I'm going to talk to you. But before that, teaching for most of us was by choice, and for some it was by chance, because there was no other profession which they could get into, and they thought, okay, let me start teaching. And those who came into the profession by chance also became professional teachers. Now today I'm going to change the statement. I'm going to tell you that teaching should not be by chance, teaching should not be by choice, but teaching should be by passion. This is what I feel. You may not agree with this, but this is what I feel. It has to be by passion, because with the conditions we are living in,
post-COVID, everything has got changed. Teachers are required to learn online. Teachers are required to become tech savvy. There was a time when I wanted the teachers to get tech savvy. Teachers were very hesitant, and they also threatened that we would leave and go take up a job in another school. This is one thing which we will not be able to do. But when the situation demanded, and there was a demand in the last 20 months, how many of us worked hard to learn, to understand how we could do or how we could teach online, because it became a question of survival. We had to learn if we wanted to survive in the profession. And maximum of us learned using our own mobile phones, using different tricks, different methods. The video classes were recorded and they reached out to those students to see that the students don't waste, and to see that the students don't forget what they had learned pre-COVID. The teaching has to be by passion, and if you could develop this as a passion, definitely what all those points which I'm going to talk to you now will fall into place for you. तो मैं ये कह रहा था कि टीचिंग एज ए पैशन हमको करनी है. हमारे अंदर वो शिद्दत, वो जज्बा, मोहब्बत इस प्रोफेशन के लिए आनी चाहिए. तो फिर हम बच्चों को जिस ख्वाब या जिस अंदाज में हम इन बच्चों को आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं, वो हम ज़रूर देख पाएंगे. The teaching is distinctively human activity. It is imparting knowledge and the learning process, the means by which the student assimilates, shares whatever he's learned. It is also concerned with the growth and development of an overall personality of a student, in which spiritualism, character, with effective behavior is displayed. This is what the introduction is to teaching. Distinctively, it's a human activity. I belong to a traditional method of teaching or a teacher's group where I still believe and where I still feel that human presence in a classroom makes a lot of difference. I'm talking to you over a video clip or a series of videos where we are recording to reach out to you all teachers. But I would have been more happier if I had personally addressed you and spoken to you, or if I had imparted or shared whatever I have learned in my teaching career. Sitting here today in front of the camera, I have to do this because this is what it is today. If you teachers had been in front of me physically present there, and if I have been addressing you from a stage, then probably the learning process would have been different. But we have to go with the flow. Hence, this video is there to you. Today, I want to share what are the teacher's responsibilities. Like a very known personality, a personality whom we all loved a lot. इस शख्सियत से हम इतनी मोहब्बत किए हैं कि हम इनको भूलना नामुमकिन है. मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो है APJ अब्दुल कलाम. He says teaching is a very noble profession that shapes the character, the caliber, and the future of an individual.
If people would remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. वो कहते हैं कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो अखलाक, कैरेक्टर, टैलेंट, सलाहियतें पैदा कर सकते हैं हम बच्चों के अंदर और उनकी ज़िंदगी बना सकते हैं। अगर मुझे एज ए गुड टीचर, एक बेहतरीन टीचर, अ मेंटर के हैसियत से आप मुझे याद रखेंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम रहेगा। मेरे लिए वो ऑनर है कि लोग मुझे एक बेहतरीन टीचर के हैसियत से याद रखेंगे। इस हैसियत से नहीं कि मैं एक साइंटिस्ट या मिसाइल मैन या फिर द बेस्ट फर्स्ट सिटीजन एंड द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एक अच्छे इंसान। इन सारों के अलावा आप अगर ये समझते हैं कि एक बेहतरीन टीचर है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक ऑनर रहेगा, ये कहता है। द सेम थिंग शुड अप्लाई हमारे लिए भी। हम यही सोचें कि हम इस प्रोफेशन में जितने दिन काम करें, जब हम जाएंगे तो लोग हमको एज ए गुड टीचर अगर याद रखते हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इनाम रहेगा। आई एग्री टीचर्स डोंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैं जानता हूँ एज ए टीचिंग प्रोफेशन में जब हम जाते हैं तो हमारी सैलरीज इतनी कम होती हैं। कॉर्पोरेट लेवल्स पे जब लोग काम करते हैं विद द सेम डिग्रीज जो एजुकेशन हम हासिल किए हैं, इसी एजुकेशन के तहत अगर हम किसी कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं तो वहाँ का सिस्टम और वहाँ की जो सैलरीज हैं उससे हमको काफ़ी दुनिया में फ़ायदा हो सकता था, लेकिन हमने ये रास्ता नहीं चुना। हम जानबूझ के इस प्रोफेशन में आए हैं इसलिए कि ये हमको पसंद है। We love this profession. We love this profession, and that is why we are into this profession. Now, what is that we need to have? What are the characteristics that we should have? जब हम as a mentor, जब हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, if we are presenting ourselves as a mentor in the classroom, what should be our characteristic? What should be our goal? How do we present ourselves? सबसे पहले very important आज के ज़माने में, because students are connected with wires, जितने students आपके क्लासरूम में हैं ये सारे के सारे वायर से कनेक्टेड हैं। और वो वायर कौन सा है? मोबाइल, आईपैड्स, लैपटॉप्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। So that is why Gen Z के स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि these students are connected with wires। जब वायर से जुड़े हैं तो इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो जब क्लास में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की वजह से ये बहुत कुछ मालूमात हासिल करके आते हैं। When they come into the classroom, they are aware of what is happening in the world. They know what science is all about. They know what a black hole is all about. Everything. They would know the political situations in the different countries. They would have done a thorough study on the different diseases available which are present there in the environment. सारी चीज़ें. They are better equipped with technology than you and I. ये बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में मेरे से और आपसे ज़्यादा माहिर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कनेक्टेड है वायर से। जब ये इतनी इंफॉर्मेशन लेके क्लास में आते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको और मुझको कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उनको। जाहिर सी बात है कि हमारे पास उनसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कोई भी टॉपिक को लेके, ज़्यादा एग्जाम्पल्स होने चाहिए उस टॉपिक से कनेक्टेड जब हम बात कर रहे हैं। तो फिर आप
40 मिनट की क्लास बहुत आसानी से कंप्लीट करके बाहर आ सकते हैं। वरना ये होगा कि आप कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो स्टूडेंट्स खड़े होकर कभी उस बात का जवाब दे देते हैं, तो आप और मैं कुछ नहीं कर पाता। So the first thing which we need to have is thorough knowledge of the subject what we are teaching. सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, बीएससी में पढ़े हैं, या फिर बीएससी एमएससी किए हैं, बीए एमए किए हैं लिटरेचर में, या बीए एमए किए हैं किसी एक लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को हम पढ़ाते हैं, एमएससी मैथ्स किए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे क्लास में, जब हम कॉलेजेस में बैठ के जब ये सारी चीज़ें पढ़े थे और आज जब हम क्लासरूम में जाके पढ़ाते हैं, तो बहुत फ़र्क है। काफ़ी आगे जा चुकी है दुनिया। The world has gone ahead than what we learned in our classrooms. So will that education what we had understood in the classroom is going to help in today's classroom? It might to a certain extent, but not 100%. So it becomes very important that we do a lot of research on the subject we are teaching and then go into the classroom today. The very first one is a thorough subject of knowledge of the subject what you are teaching. Gain knowledge. The more you gain knowledge, the more content you will have. The more content you have, the more information you have, it becomes much easier to teach in a classroom. The next is excellent speech skills is what is required. Excellent speech skills. You should be so clearer. It should be so clear when you're talking to the students, without any confusion, with full confidence you talk to them. And this is possible only when you have a thorough knowledge of the subject. Your speech becomes clear when you know what you're talking about. So the speech has to be very clear. The third point, very important, is neatness of a teacher, the cleanliness of a teacher. How clean we are every day morning at 8:30 when we walk into the classroom. कितने साफ सुथरे हैं हम जब क्लास में जाते हैं। बच्चों को तो बोलते हैं कि आप रोज़ पानी नहा के आइए, साफ सुथरे कपड़े पहन के आइए, यूनिफॉर्म साफ होना चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, बाल संवार के आने चाहिए, ये सब चीज़ें बोलते हैं, नाखून कटे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को इतना बोलते हैं, लेकिन क्या हम खुद इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं? Are we practicing what we are preaching? If you are preaching and if you are not practicing, then you know what you're talking about. And we know what you're talking about. And don't be surprised when one of the students would stand up and say, "Ma'am, you ask us to cut the nails and your nails are not cut. Sir, you asked us to polish our shoes. Your shoes are not polished." The Gen Z students can do this to you. बच्चे खड़े होके बोल सकते हैं, "मैम, आपने हमारे नाखून और जूते पॉलिश करके आने के लिए कहा था, आपके नाखून कटे हुए नहीं हैं। सर, आपके जूते पॉलिश किए हुए नहीं हैं, आपके कपड़े साफ सुथरे नहीं हैं, आप हमको बोल रहे हैं कि खाना इस तरीके से खाना चाहिए, लेकिन आपके खाने का तरीका अलग है। आप हमको बोलते हैं कि बैठ के पानी पिएं, लेकिन आप खड़े होकर पानी पीते हैं। सो द नीटनेस इज समथिंग which is very very important for a mentor. 3 बातें मैंने बताई। thorough knowledge of the subject, excellent speech skills होने चाहिए, neatness is more important, and the fourth one is a teacher should have a sense of humor. हंसी मजाक करने की जो skills हैं,
सीरियसली अगर आप क्लास में जाके पढ़ाना शुरू करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं पढ़ाएंगे आप उस क्लास में। नेचुरली बच्चे आपको ये नहीं कहेंगे आप बाहर जाइए क्लास से, लेकिन बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। So it becomes more important that that you have a sense of humor. You add humor to your class. हंसाने के जितने तरीके आप सीख सकते हैं, अब अपने आप पे भी हंसना शुरू करेंगे तो फिर डेफिनेटली चिल्ड्रन विल स्टार्ट, बच्चे आपको पसंद करना शुरू। तो इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि जब आप क्लास शुरू करेंगे तो कोशिश करिए कि एक अच्छी सी छोटी सी मॉरल स्टोरी सुनाए जिससे कोई सबक मिले। बहुत मिलेंगे आपको। फिर उसके साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी डाल दीजिए तो बच्चे हंसेंगे, डिस्ट्रेस हो जाएंगे। मतलब पहले क्लास से आप दूसरी क्लास में जा रहे हैं, मतलब सेकेंड सेशन में जा रहे हैं या थर्ड सेशन में जा रहे हैं, तो पहले 2 सेशन से इतने परेशान हैं, थर्ड सेशन में आप जब जाएंगे तो थोड़ी बहुत आप कॉमेडी कर लिए, 2-3 मिनट में कोई भी 2-3 जोक्स आप सुना दिए तो ऑटोमेटिकली जितना प्रेशर था वो प्रेशर उतर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मैं अक्सर आज भी इतने साल के बाद आज भी टॉम एंड जेरी का जो कार्टून देखता हूँ तो मैं इतना हंसता हूँ, इट गिव्स मी लाइफ। टॉम एंड जेरी द कार्टून जो एकदम सीरियसली आप उसको देखना शुरू करेंगे, थोड़ी देर में आप इतना हंसना शुरू करेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो व्हेन यू वॉच दीज कॉमेडी कार्टून्स, आज के तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या कॉमेडी कार्टून्स आते हैं, लेकिन मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ। आज भी वो अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे। जब आप देखते हैं, जब मैं देखता हूँ, तो देन यू गेट दैट, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मिलती हैं जो मैं क्लासरूम के अंदर ले जा सकता हूँ। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, एक वसी तौर पे आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप फैलाइए। ब्रॉड इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू योर क्लास, कोई भी चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर्स के प्लीज़ रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे। रोज़ाना कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर 10-15 मिनट आप पढ़ें। एक आधा घंटा जो है आप सोने से पहले कोई भी एक चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस चैनल का न्यूज़ आप पूरा देखिए। फिर आपको जो है कई सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैं जो न्यूज़ चैनल देखते रहता हूँ वो है WION, WION। इस चैनल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कि वो न्यूज़ चैनल में जो प्रेजेंटर है, जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता है, इतनी क्लैरिटी के साथ हर बात समझ में आ जाएगी आपको। तो इसी का एक वीडियो क्लिप मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि आने वाले दिनों में हम लैब में बने हुए चावल खाना शुरू करेंगे। अब ये नहीं मालूम कि कितना इसमें सच है और कितना हकीकत है, क्या यह वाकई में होगा, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज के दौर में, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। क्या हम फरवरी 2020 में क्या हमने सोचा था कि 1 साल से ज़्यादा स्कूल्स बंद रहेंगे? कभी नहीं। जो टीचर्स 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, कभी आपने इस तरीके की स्कूल्स की छुट्टियां देखी थी? नहीं देखी थी। क्या कभी हमने ये सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे? नहीं। तो देखिए क्या हो गया। ये जो न्यूज़ आती हैं, हो सकता है कि ये पॉसिबल है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको मिलेंगे। तो फिर आप जो वैल्यू, जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं,
तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे स्टोरीज को। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? गिव इम्पोर्टेंस टू फार्मिंग, गिव इम्पोर्टेंस टू फार्मर्स, किसान को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये बात हम बच्चों के अंदर अगर डालेंगे then automatically students will start liking for that profession. इंजीनियरिंग हासिल करने के बाद हिंदुस्तान छोड़ के जाके दूसरे मुल्कों में बच्चे नौकरी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी बात है, लेकिन कुछ लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि हम ऐसे बच्चे भी तैयार करें जो यहाँ रह जाएं and take up a profession which is very important for the society. होम के लिए, मास्टरे के लिए कौन से प्रोफेशंस इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रोफेशंस के तरफ हम बच्चों को तैयार करना हमारा फर्ज है। तो ये सब होगा कब? व्हेन वी नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। इंटरेस्ट पैदा करें अपने आप में कि हमको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी, फिफ्थ पॉइंट, अपनी पर्सनालिटी जो है एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। हम प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट टीचर्स ओनली, वी आर ऑल्सो लीडर्स। वी आर लीडिंग अ बंच ऑफ 24 स्टूडेंट्स इनटू द फ्यूचर लाइफ। वी आर लीडिंग दोस 24 स्टूडेंट्स इन द लाइफ हियर आफ्टर। हम इन 24 बच्चों की आखिरत बनाने के लिए हम एज ए लीडर उनके पास गए हैं। तो फिर हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, पेशेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पर्सनालिटी जो है, हम किसी के तरफ ज़्यादा पार्शियलिटी ना दिखाएं, इक्वली हम बच्चों को ट्रीट करें। प्रोफेशनली वेल ग्रूम्ड, प्रोफेशनली हम हर चीज़ को प्रोफेशनली लें। स्कूल में जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करें। मिसाल के तौर पे, अगर स्कूल के मैनेजमेंट ने अपॉइंटमेंट लेटर में आपको ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि आप 8:15 को रिपोर्ट करेंगे, स्कूल 8:30 को शुरू होती है, तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम 8:15 को वहाँ पहुँचें। सिस्टम फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। आपको कहा जाता है कि आप लेसन प्लान लिखेंगे, सबमिट करेंगे, एक वीक पहले आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज आपको एक वीक पहले प्रिंसिपल को सबमिट करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज प्रोफेशनली ग्रूम्ड टीचर। रिसोर्सेज चाहिए, आप सुबह पढ़ाने जा रहे हैं और आपको पता लगा कि सुबह सुबह जो है ये मटेरियल नहीं है, 10 बजे की क्लास है, 9:45 बजे पहुंच गए प्रिंसिपल के रूम में और इतनी लंबी लिस्ट पेरिस लगा दी और बोले कि ये मुझे चाहिए मैम 15 मिनट में। कहाँ से आएगा? प्रोफेशनली हम काम नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम स्कूल्स में काम करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर अचानक कहीं हमको एक बेहतरीन नौकरी मिल सकती है। कोई दूसरे स्कूल से हमको ऑफर्स आते हैं जहाँ पे हमारी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, तो हमको जाना है, जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये आपका हक है, मेरा हक है कि मैं इस प्रोफेशन में इस स्कूल से हट के दूसरे स्कूल जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो मेरी ज़रूरत है। तो फिर जब जा रहे हैं तो सिस्टम को फॉलो करिए, बाकायदा जो है आप क्लियरली फॉलो द सिस्टम एंड से आई एम लीविंग। एग्जिट पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। Your exit policy should be good so that tomorrow when you come back to the school, the principal should be happy to take you back. मैं जा रहा हूँ स्कूल छोड़ के, किसी वजह से अगर वहाँ बात जमी नहीं तो 2-3 महीने बाद मुझे लगेगा कि अरे वो जो पहली नौकरी थी वो बहुत अच्छी थी। तो अगर मुझे वापस आना है, अगर यहाँ से मैं ठीक तरीके से गया होता तो मैं वापस आऊँगा, तो वो प्रिंसिपल बुला के बोले, मिस्टर उमरी, आप जब भी वापस आएंगे हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये लफ्ज़
आने चाहिए जब हम नौकरी छोड़ के जाते हैं। और ये होगा कब? जब हम इसको प्रोफेशनली हैंडल करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, टॉलरेंट एंड फेयर विदाउट पार्शियलिटी। हमारी टॉलरेंस लेवल इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों के अंदर टॉलरेंट लेवल बहुत कम है। एज ए टीचर हम भी बहुत ही कम टॉलरेंट हैं, यानी हम अपने आप को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ का। कोई कुछ बोल दिया, हमको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कभी कभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम एक सेकेंड के लिए सोचें, रुक जाएं और सोचें। टॉलरेंट, फेयर विदाउट पार्शियलिटी। कोई पेरेंट आए थे स्कूल पे, some parent had come and they reported to the principal that you have not corrected the books. कोई पेरेंट आए, प्रिंसिपल से कह के गए कि आपने उस बच्चे के नोटबुक्स करेक्ट नहीं किए हैं। प्रिंसिपल ने बुलाया। अब जाहिर सी बात है थोड़ी डांट पड़ेगी। अब जब डांट पड़ गई तो फिर दूसरे दिन जब वो बच्चा आता है तो हमारा रवैया, the behavior towards the child will change. अच्छा, तो आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन की। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस एटीट्यूड से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देन आप पर्सनली उस बच्चे को टारगेट कर रहे हैं जिसकी गलती ही नहीं है। वहाँ पे पेरेंट ने कंप्लेन किया, बच्चे ने कंप्लेन नहीं किया था। पेरेंट ने जब बुक्स खोल के देखे तो पेरेंट को पता चला कि पिछले 3 महीने से बुक्स की करेक्शन नहीं हुई है। हो सकता है कि कहीं आप और मैं कभी कभी गड़बड़ में, जल्दबाजी में भूल जाते हैं और एक नोटबुक रह जाती है करेक्शन के लिए, तो वही होगा। लेकिन पेरेंट ने उसको उस तरीके से नहीं समझा और कंप्लेन कर दी। और अब आप उस स्टूडेंट को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। You start treating that child completely different. This is again not a professionalism, and you are not doing justice to that particular student. तो ये 10 पॉइंट्स मैं अभी आपको बताया हूँ कि थरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, excellent speech, neatness and poise, sense of humor होना चाहिए, ब्रॉड इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब सीखना। मैं अगर साइंस टीचर हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी अपनी इम्प्रूव करूँ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड की इंफॉर्मेशन मेरे पास रहे। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू मेक श्योर दैट I get to know what is happening in the sports arena. I get to know what is happening in the literature world. I need to get to know what is happening in the political scenarios in the country and all around the world. All around the world. हम में से कितने टीचर्स ऐसे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्टेट के होम मिनिस्टर का नाम बताइए, गूगल करना शुरू करेंगे। आपके स्टेट कैबिनेट में कितने वुमेन लेडी मिनिस्टर्स हैं? नो इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन योर स्टेट? कितने लोग पढ़ लिखे हैं? नो इंफॉर्मेशन। गूगल करना शुरू करेंगे, कुछ भी पूछिए, गूगल माता, वहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, टक बोलेंगे। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको तो मालूम होनी चाहिए। एज ए टीचर अब क्लास में आप गूगल का इस्तेमाल करते हुए नहीं पढ़ा सकता। फिर बच्चे ये भी बोलेंगे, हमको तो हमारा एग्ज़ाम तो आप लेते हैं तो उस वक्त हमको देख के लिखने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो देख के पढ़ाते हैं। ये बात भी आएगी। You ask us not to see the textbook when we are writing an examination,
And when you are teaching, you use a Google and then start teaching. What difference is it? Why is this difference? This may also come. Tomorrow, don't be surprised if the student stands up and gives you the statement. So, interest, your personality should be balanced. Professionally, you should be groomed. And the tolerance level should be so high. So high. हमारी टॉलरेंस लेवल इतनी गिर चुकी है, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, किसी ने कुछ कह दिया, पलट के धड़ाधड़ जो है कमेंट्स डालना शुरू करता है. तो इमेजिन द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 10-15 years. हम तो अभी कमेंट्स डाल रहे हैं, बाद में बच्चे मारा मारी पे उतर आएंगे. किसी ने मेरे रिलीजन पे कुछ कह दिया, किसी ने मेरे कल्चर पे कुछ कह दिया, किसी ने मेरे ख़ानदान के बारे में कुछ कमेंट कर दिया, या मेरे रहन सहन पे कमेंट कर दिया, मेरे खाने पीने पे कमेंट कर दिया. तो कमेंट करते हैं, करने दीजिए. टॉलरेंस लेवल कितना है, तो वो टॉलरेंस लेवल क्या आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चों के पास? दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स. इसके अलावा कुछ और भी हैं, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ. व्हाट इज़ इट? बी वेरी काइंड एंड पेशेंट. बहुत बहुत सब्र होनी चाहिए. अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि देयर इज़ नो पेशेंस. हाँ, वाकई में मेरे पास सब्र नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि व्हेन आई वॉक इनटू अ क्लासरूम, आई हैव ऑल द पेशेंस इन द क्लासरूम. इतनी सब्र से मैं क्लासरूम में पढ़ा के आता हूँ. क्लासरूम के बाहर नहीं है मेरे पास पेशेंस, लेकिन क्लास के अंदर, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज पैशनेट टू मी. I work from here. I work from here. I don't work from here. It's so important for me that this profession, though I came into this profession by chance, not by choice and not by passion, it became a choice and it became passion to me. So patience is something I have enormous. इतनी सब्र है मेरे पास कि जब मैं क्लास में जाता हूँ, I teach with 100% passion, and I'm very, very patient when it comes to the student. I'm not patient towards when the teacher is not working perfectly. I react immediately. Reader, the one who loves books. A teacher is somebody who loves book. So my question here to the teacher is, how many books do you read in a month? I have students who read 60-70 books in a month. हाँ, उनके पास बहुत टाइम है सर, इसलिए 60-70 किताबें पढ़ते होंगे. हमारे पास इतना टाइम कहाँ है? टाइम है. अगर आप स्कूल जाते समय बस में जाते हैं, तो उस आधे घंटे के सफ़र में आप मिनिमम 10 से 15 पेजेस पढ़ सकते हैं किताब की. वापसी में 10-15 पेजेस, 30 पेजेस इन अ डे. तो अगर 300 पेज की किताब है तो 10 दिन में एक किताब खत्म हो जाएगी. तो महीने में कितने बुक्स हुए? 3. एंड 3 एक अच्छा नंबर है. इट्स अ गुड नंबर. If you are reading 3 books in a month, then you will understand how important it becomes for you. And इतना कंटेंट आपके पास आ जाएगा उन 3 बुक्स में. जो कंटेंट जो राइटर ने लिखा है उसमें कोटेशंस हो सकते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं. ये चीज़ें आप क्लास में लेके जाएंगे तो फिर आपकी क्लास रंगीन बन सकती है. It can become a live class. Then, so that's why it becomes very important
जिन स्कूल्स में मैं कंसल्टेंसी करने जाता हूँ वहाँ मेरा कंडीशन ये होता है टीचर्स को जब ट्रेन करता हूँ तो क्लियरली आई गिव देम अ टारगेट। मैं बोल के आता हूँ अगले महीने में जब आऊँगा तब तक आप 2 किताबें पढ़ के रखिए, फिर उसका बुक रिव्यू लिखिए, समराइज करके समरी लिख के रखिए कि आपने इस किताब में क्या पढ़ा, क्या सीखा। एवर लविंग नेचर, love your students irrespective of that parent who complained against you। जो पेरेंट ने आपके खिलाफ कंप्लेन दे के गए थे प्रिंसिपल को, उस बच्चे से भी आपको उतनी मोहब्बत करनी है जो बाकी बच्चे के साथ आप करते हैं। आज भी आई कैन गिव यू द नेम्स ऑफ दोज टीचर्स हु लव्ड मी एज अ स्टूडेंट इन एवरी क्लास। I still remember when I finished my grade 7, जो स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ सिर्फ 7वीं तक क्लासेस होते थे। 8th स्टैंडर्ड के लिए मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। जब 7th का रिजल्ट आया, जब मैं स्कूल पहुँचा, इतना रोया था मैं कि उस टीचर से अलग होना नहीं चाहता था। Because that teacher really loved me a lot. The class teacher जो थी इतनी मोहब्बत से पढ़ाती थी। एक और शख्सियत है जिनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, जो टीचर हमको मदरसे में पढ़ाते थे। तकरीबन उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, वहाँ के सारे बच्चों की तरबियत इन मौलाना ने किया था। और उनका जो पढ़ाने का अंदाज था बहुत ही स्ट्रिक्ट। एक दिन भी अगर एब्सेंट होते तो वापस क्लास में जाने के लिए इतनी परेशानी होती थी हमको। बगैर इत्तला दिए अगर आप छुट्टी ले लिए तो दूसरे दिन आपको दाखिला नहीं मिलता था और किसी की रिकमेंडेशन नहीं चलती थी। नाजरा कुरान का पूरा नाजरा उन्होंने करवाया। इस्लाम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमको बताई। उस उम्र में he made us understand what Islam is. This teacher was so strict, लेकिन उतनी मोहब्बत करते थे। गलती हुई तो मार, लेकिन जब अच्छा पढ़ते थे और नॉर्मल टाइम, he lived like a friend to all the students. He passed away a few years back. कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ। मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। May he get the best place in Jannah. Today I am remembering this teacher in this class is because the teacher had such love and affection. Can you remember a teacher of yours like that? इतने टीचर्स मुझे पढ़ाए, लेकिन मैं आज आपके सामने सिर्फ 1 या 2 टीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो रीज़न क्या है, क्यों हम सारे टीचर्स को याद नहीं रखते हैं? क्योंकि कुछ टीचर्स ही ख़ास होते हैं। अब आप वो ख़ास टीचर बन सकते हैं, या अगर आपको वो ख़ास टीचर बनना है तो कितनी शिद्दत से आप मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कई टीचर्स आते हैं, कई टीचर्स जाते हैं, लेकिन आखिर में वो स्टूडेंट कितने टीचर्स को याद रखेगा वो इम्पोर्टेंट है। और उसकी कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि 50-60 टीचर्स में से आप नंबर 1 स्पॉट पे पहुंचना है। और वो कब होगा? जब ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने अंदर ढालेंगे, तो देन you would become one of the best mentor for that student.
good orator, excellent communication skills. Excellent communication skills. आप बोलना शुरू करेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे. That should be, this will create an impact here. If you start speaking well, अगर आप एक बेहतरीन मुखर्रिर बन सकते हैं, where every word, हर लफ्ज बच्चे को समझ में आएगा, बहुत आराम से आप जब बात करेंगे वो सुनेगा और यहाँ से आपको पसंद करना शुरू करेगा. Keen observer, supporter and listener. You should be the best observer, best listener, best supporter. Support your students all the time. हाँ, कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, प्रिंसिपल बुलाते हैं, क्या आपके स्टूडेंट्स ने ये किया? नहीं मैम, हमारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया. कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन बच्चों की भलाई के लिए. फिर आप क्लास में जाके उन बच्चों से डील करिए, उन बच्चों को आप डांटिए. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. You go back into the class and then you can take an action on the students. But do not let your students down in front of the entire school. Always support your students. Be on the side of your students, not on the management side, not on the principal side, not on the parent side. You have to be on your student side. Listener. बच्चे बोलते हैं तो सुनिए. उनको कहिए कि आप अपने घर में, आप कहीं गए थे, किसी के गांव गए थे, वहां आपने क्या देखा, क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या किया. लेट्स शेयर. समर हॉलीडेज हमने कहाँ गुजारा, बोलिए. लिसनिंग. बच्चे अपने दर्द, कुछ प्रॉब्लम सुनाते हैं तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज हम पढ़ाने के लिए गए, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं गए. बट मैं तो ये कहूँगा, हम वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने गए, पढ़ाने के लिए नहीं गए. लीडरशिप एबिलिटी. लीड. इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कुछ आप करेंगे आपके बच्चे वही करेंगे. तनवीर साहब एक मिसाल देते हैं. कोई बच्ची जो है, घर पहुंचने के बाद आईने के सामने खड़े होके मेकअप कर रही थी, यानी बाय एक्शन मेकअप हो रहा था, तो लिपस्टिक लगा रही थी. लिपस्टिक जिस तरीके से लगाते हैं, अब घर में परेशान हो गए लोग, क्योंकि कोई इस्तेमाल नहीं करते ये सारी चीज़ें. तो ये कहाँ हुआ? तो पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं तो पता चला कि टीचर क्लासरूम में ये कर रही थी, आईब्रोज, लिपस्टिक, सब चीजें. एंड द स्टूडेंट कॉपीड, बिकॉज व्हाट यू डू, यू आर अ लीडर. आप जो करेंगे द स्टूडेंट वुड कॉपी यू. आपकी बोलचाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से कपड़े पहनेंगे, आपकी साफ सफाई, everything is observed by the students. मैं हमेशा टीचर्स को बोलता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. आप बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको करनी चाहिए. आपसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. आप रोज़ाना जो नॉर्मल रेगुलर ड्रेसेस पहन के जाते हैं, कभी एक दिन आप देखिए कोई नया शर्ट पहन के जाइए, या फिर आप नया कंप्लीटली नया ड्रेस पहन के जाइए. यहाँ तक कि अगर आपकी कान की बाली अगर नहीं है तो स्टूडेंट वुड इमीडिएटली गेट, मैम यू आर वेयरिंग ए न्यू ईयररिंग, यू आर वेयरिंग ए न्यू वॉच, यू आर वेयरिंग ए न्यू रिंग, यू आर वेयरिंग न्यू स्लीपर्स. All this is observed by the students and they would definitely follow you. So leadership ability should be there. You lead them, the way you talk,
the way you present, your neatness, your punctuality, your problem solving techniques, your communication skills, your love and affection. And when there is a problem in the class, you are the first person to be there in the class. Not only in the class. I'll give another example. एक टीचर थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और स्कूल का भी नाम नहीं ले रहा हूँ. There was a teacher. स्कूल बस में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए थे, जो टीचर लास्ट पॉइंट तक पहुँचेगी उस टीचर की जिम्मेदारी है कि द टीचर शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द बस. क्योंकि बस में बच्चे गड़बड़ करते हैं, बस के चलते समय उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मारा मारी करते हैं. सो द टीचर वॉज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इत्तेफाक से ये हुआ कि वन डे द बस मेट विद एन एक्सीडेंट इन बिटवीन. बीच रास्ते में ड्राइवर किसी कार से एक्सीडेंट हो गया. अब जो कार में जो लड़के थे वो ड्राइवर पे इतना हावी हो गए कि बस को रोक के ड्राइवर को मारने के लिए आ गए. तो उस सूरत में इस टीचर ने बस से उतर के ऑटो पकड़ के घर पहुंच गए. बस में बच्चे अकेले, ड्राइवर मार खा रहा है, बच्चे रोना धोना शुरू किए. किसी तरीके से ड्राइवर उससे निकल के जो है स्कूल में जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उनको कॉल करके बोला. ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मेरे पास आए क्योंकि मैं स्कूल का जिम्मेदार था. तो हम दोनों इमीडिएटली अपनी कार निकाली. मैं वहाँ पहुँचा तो देखा बस में टीचर नहीं है. तो पहली फुर्सत में मैंने उन लड़कों से बात की. मैंने कहा मैं यहाँ रुकूंगा, ड्राइवर को जाने दो. फिर हमने वो मामला सुलझाया. अब वो टीचर की जिम्मेदारी थी कि बच्चों को संभालना. हाँ, डर गई होंगी, मैं मानता हूँ कि कुछ हो सकता था, लेकिन वहाँ और भी लोग थे, उनके सपोर्ट से बच्चों को संभाला जा सकता. या एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देती कि सर ये प्रॉब्लम है, आप जल्दी आइए. वो टीचर ने ये भी नहीं किया. आई एम नॉट ब्लेमिंग द टीचर हियर. मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लीडर इज समबडी हु विल नॉट रन अवे फ्रॉम द वॉर फील्ड. जंग के मैदान से लीडर भाग जाएगा तो क्या हालत होगी, आप सोच के देखिए. सो लीडरशिप इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम है तो लीडर रहना चाहिए, जीत गए तो भी लीडर होना चाहिए. इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स. आपके बच्चों के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए. आपको ये दिलचस्पी इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसा अपने बच्चों के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, जो माएँ हैं, द मदर्स, द फादर्स, द वे यू आर इंटरेस्टेड इन योर चिल्ड्रन. You work hard, you get them the best clothes, you get them the best books, you give them the best facilities, you give them the best facilities. इतनी दिलचस्पी हम अपने बच्चों के अंदर दिखाते हैं, भूखे रहते हैं लेकिन बच्चों को खिलाते हैं. That is a kind of interest which you should have in your 24 students in the class. They are your children. ये बच्चे आपके हैं. वो 10 महीने जब बच्चे आपके साथ रहेंगे, 10 महीने आपके साथ रहने के बाद अगले 50-60 साल तक वो स्टूडेंट्स वो 10 महीनों को याद करके रहना है. This is the kind of impact that 10 months that your student spends with you in your that particular academic year. They should remember you for the next 45-50 years. Can you create that kind of impact in the class? If you can, it's very simple. Share your stories, share your problems, help them solve their problems, sit and eat with them, maintain a neat, disciplined life with them, talk to them, share stories, jokes, spend time with them. अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट कंटेंट या बेहतरीन मेथोडोलॉजी में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है.
उसके अलावा ये सारी चीज़ें करिए। देन प्ले गेम्स विद देम। छोटे बच्चे हैं, आप स्पोर्ट्स फील्ड में चले जाइए बच्चों के साथ, रनिंग रेस, फुटबॉल, सब कुछ खेलिए जो आप खेल सकते हैं। कैरम्स, चेस, ये सारे इंडोर गेम्स। आप कभी आपके बच्चों के साथ आपने गेम्स खेले हैं? नहीं खेले हैं तो फौरन इसको अडैप्ट करिए। देन यू सी हाउ यू वुड बिकम अ मेंटर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये सेशन लंबा है बट it's very important session for you because I'm talking about the responsibilities of a teacher. मैंने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। अब अगले सेशन में मैं कुछ और चीज़ों पे आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा। There are some more points which I want to bring it to your notice on how important it is for you to be a mentor and what characteristics you need to adapt, what role you need to play as a teacher or as a mentor in a classroom. We'll come back into the next session. Thank you.